Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today in this lecture we will talk about other exothermic processes. There is a difference between exothermic reactions and endothermic processes. So what are some examples of exothermic process? So please understand this concept carefully. That are not chemical reactions, जो कि chemical reactions नहीं होते. Chemical reaction को हम chemical change भी कहते हैं, क्योंकि previous class में हमने इसको chemical change के नाम से भी पढ़ा था. ठीक है, chemical change में ये होता है कि हम उस substance को यानी कि एक substance किसी दूसरे substance में change हो जाता है by rearranging their atoms. मतलब atoms की rearrangement की वजह से एक element किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ मिलकर अपनी अपनी पोजीशन को या अपनी रीअरेंजमेंट करके एटम्स की रीअरेंजमेंट करके वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है. लेकिन अगर हम बात करें कि कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है वो कोई किसी किस्म का केमिकल चेंज नहीं होता. राइट, चेंज इन स्टेट तो वो हो सकता है, ठीक है, या फिर उसको हम ये कह सकते हैं कि अपनी हालत को, यानी कि अगर कोई चीज़ सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड है या वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वो कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होता, यानी कि केमिकल चेंज नहीं होता. ठीक है, सो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इफ़ यू डिज़ोल्व मैग्नीशियम सल्फेट इन वाटर. मैग्नीशियम सल्फेट एक तरह का सॉल्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम सल्फेट salt in water, you get magnesium sulfate solution, which is a mixture. So when we talk about a mixture, so mixture is not a new substance, so we will say no new substances are formed, hence the process of dissolving is also known as dissolution. Right, it is not a chemical reaction, so we must know that dissolution is not any chemical reaction or chemical change. Right, so we also talk about it further. Similarly, when a new substance changes its state, no new substances is formed. Means simply we can say, for example, there is water and we provide heat to that water and it evaporates, so it changes into gas. Right, so when liquid water freezes, okay, they are showing you an example. When liquid water freezes, it changes into ice, which is a solid state of water. So it is water but in solid state. Right, so hence change of state are not chemical reactions, change of state are not the chemical reactions. So we will say not all exothermic processes are chemical reactions, यानी कि तमाम के तमाम जो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होते हैं वो केमिकल रिएक्शन नहीं होते. ठीक है, सो अगर हम एक और एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं. लेट्स सपोज डिसॉल्विंग सर्टेन सॉल्ट्स इन वाटर. Right, we are going to dissolve some salts in water, so we will observe, fill a polystyrene cup with 100 ml of water. Right, polystyrene cup आपने देखा होगा जो हमारे रिसाइकिल कप होते हैं जिनमें आमतौर पर हम चाय वगैरह पीते हैं. ठीक है, उसको हम पॉलीस्टीरीन कप भी कहते हैं. सो उसके बाद फिर हमने क्या करना है, मेजर टेम्परेचर ऑफ द वाटर. ठीक है, हमने उसके अंदर थर्मोमीटर डाला एंड देन वी मेजर्ड द टेम्परेचर ऑफ इट. ओके, and then what did we do, we add 10 grams of salt, calcium chloride. Calcium chloride is also a salt. Okay, calcium chloride, I will write the formula of it. Cl2, Ca for calcium and Cl2 for chloride. So calcium chloride to the cup of water and stirrer का मतलब होता है उसको हिलाया हमने. Right, okay, now what do we observe, we observe the change in temperature until the temperature is steady. फिर हमें उसको टेम्परेचर को मेजर करना है. सो अब हमने ऑब्जर्व करना है कि हैज़ द टेम्परेचर राइजन और ड्रॉप्ड, क्या टेम्परेचर बढ़ा, मतलब आफ्टर डिजॉल्विंग द सॉल्ट क्या टेम्परेचर उसका बढ़ा या फिर टेम्परेचर उसका कम हुआ. वाई इज़ पॉलीस्टीरीन कप यूज्ड, और पॉलीस्टीरीन कप हमने क्यों यूज़ किया, इस सवाल का जवाब अब आप लोग मुझे बताइए. ओके, वी हैव अनदर एग्जांपल. Dissolving certain salts in water, then again we used calcium chloride dissolved in water to form calcium chloride solution. It became calcium chloride solution. When we dissolve when we put some calcium chloride salt and we stir it, so it will be a calcium chloride solution. Right, it is an exothermic process as energy in the form of heat is released to the surroundings. So हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो वाटर है वो किसी हद तक कुछ गर्म हुआ और उसमें से हीट जो है वो रिलीज़ हुई. सो जब हीट रिलीज़ होगी तो हम ये कहेंगे कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. ठीक है, इट इज़ नॉट द रिएक्शन बट इट इज़ अ प्रोसेस. सो देयर इज़ अ चेंज
in reaction and the process. In reaction there is a in reaction there new materials and new substances are formed, while in process no new substances are formed. This causes the temperature of the solution in the polystyrene cup rise. ठीक है, ये दूसरा उस सवाल का आंसर है. सो जो सवालात पूछे थे उसके प्रॉपर जवाबात ये हैं. ठीक है, सो आई होप कि यू आर क्लियर विद इट. Now we go to another example, dissolving certain salts in water. We use magnesium sulfate. So what is magnesium sulfate? It is also a salt. I will write its formula, chemical formula: magnesium sulfate, MgSO4. Mg for magnesium and SO4 is known as sulfate. So it became magnesium sulfate. When we dissolve magnesium sulfate in water, is an exothermic process too. What happens? Because when you will dissolve magnesium sulfate salt into water, so it definitely the same thing or the same phenomena will happen. Means you will have the same observation at this time as we were getting in the case of calcium chloride salt that we used in the previous example, calcium chloride, right? So this is simple. These exothermic processes are made use of in heat packs and ice melters. We keep them we keep these salts to some isolated kind of jar or bottle or packings. Okay, we do not keep them openly into the air or in contact with the water vapors or the moisture which is present in the air, because the physical process or the exothermic process will start to happen if we keep them ओपनली. अगर हम उनको खुला रख दें तो एयर के साथ और एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स यानी कि जो मॉइस्चर होता है उसके साथ रिएक्ट करके वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना का अंदेशा होता है. एक्सोथर्मिक उससे बचने के लिए हम उसको क्या करते हैं, एक आइसोलेटेड हीट पैक के साथ हम उसको रखते हैं, आइस मेल्टर्स के साथ हम उसको की हिफाजत की वजह से हम उसमें रख के उसको पैक करते हैं, राइट? सो दैट कि वो हमें उतनी ही हालत में मिले. Okay, now we come and some other examples. It's a process which is known as freezing. During winter, the surface of the lake freezes to become ice. हम देखते हैं कि जो surfaces होती हैं किसी भी झील की या किसी भी समंदर की या दरिया वगैरह की, ठीक है, दरिया में तो ये नहीं होता, लेक खास तौर पे, क्योंकि उसके ऊपर जो पानी होता है वो जो है स्टेशनरी होता है. लेकिन कहीं पे भी अगर पानी रुका हुआ है, राइट, सो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो सरफेस है वो जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, राइट? सो फ्रीजिंग इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. नोट इट डाउन बेटा, फ्रीजिंग इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. क्यों? क्योंकि उसमें से हीट जो है वो एब्जॉर्ब होकर उसमें से जो वाटर है, वाटर में से हीट रिलीज़ होकर सिस्टम में चली जाती है, और वाटर का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है, यानी कि उसका जो इंटरनल टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत होता है वो कम से कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो वाटर जो है वो फ्रीज़ हो जाता है. ठीक है, जब भी किसी चीज़ का टेम्परेचर हम कम कर दें तो वो फ्रीजिंग की तरफ चली जाती है, ख़ास तौर पर जितने भी लिक्विड्स हैं. और वाटर जो है वो आपको पता है कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका टेम्परेचर पहुँच जाता है तो इट स्टार्ट्स टू फ्रीज, वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है. टू अंडरस्टैंड वाई इट इज़, you can make use of particle theory. Now they are telling you the reason of freezing. Okay, so here the reason is mentioned. What happens when there is a liquid form, liquid state, the kinetic energy or the heat energy which is present inside the molecules of the liquid particles is more, right? And as soon as heat goes away, it releases heat, so particles become closer, and once they become closer they become solid. So वो solid बनना शुरू हो जाते हैं. तो ये पूरी की पूरी एक explanation है जो कि यहाँ पर आपको दी हुई है. They lose energy and then they are not able to move faster, they become closer and then they become solid. So this is the main reason as per the concept of particle theory. So the attractive force, the main further they are explaining that attractive forces between the particles become more stronger as they come closer together. जैसे जैसे वो particles करीब से करीब आते जाते हैं तो उनके दरमियान जो force है, of attraction है, वो बढ़ती जाती है, stronger होती जाती है. उसके नतीजे में वो solid की shape इख्तियार कर जाते हैं. ठीक है, इसी तरीके से solid की state इख्तियार कर जाती हैं, I would say. Eventually, the forces are strong enough to form bonds between the particles and hold them
इन फिक्स्ड पोजीशंस। क्या मतलब हुआ? इवेंचुअली द फोर्सेस आर स्ट्रांग इनफ टू फॉर्म बॉन्ड्स। बॉन्ड्स किस सूरत में बनाते हैं कि वो चूँकि करीब से करीब आ जाते हैं तो उनके दरमियान जो जिसे हम कहते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये इंशाल्लाह ताला आप इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल एक फ़ोर्स होती है, ठीक है, जिसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। तो वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जब वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं तो पार्टिकल्स बहुत करीब से करीब आना शुरू हो जाते हैं और वो बॉन्ड हो जाते हैं और वो फोर्सेस जो है उनको होल्ड करती हैं एक फ़िक्स पोजीशन में, यानी कि दब जाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उसके नतीजे में वो जो स्टेट है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत करीब करीब होते हैं। द लिक्विड चेंजेस टू अ स्टेट टू अ सॉलिड स्टेट दैट इज़ फ्रीजेस। लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना, इस प्रोसेस को हम फ्रीजेस कहते हैं या फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। हीट इज़ रिलीज्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द पार्टिकल्स। और जब बॉन्ड बनता है कोई पार्टिकल्स के दरमियान, जैसा कि मैंने मॉलिक्यूल्स की मिसाल दी, तो ऐसी सूरत में पार्टिकल्स से हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। जब उनके दरमियान बॉन्ड बनता है तो वहाँ से उन पार्टिकल से एनर्जी रिलीज होती है। आई होप कि यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। सो नाउ आई एम देयर आर टू की पॉइंट्स, मेन की पॉइंट्स, which is the conclusion of the whole lecture that we studied now and I delivered. So an exothermic process gives out energy to its surroundings. जब भी कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो हीट एनर्जी रिलीज़ होती है और वो कहाँ जाती है? सराउंडिंग में जाती है। सराउंडिंग क्या है? जो भी इर्द गिर्द का इलाका है या जो भी इर्द गिर्द की जगह है, राइट। एंड नंबर 2, डिज़ोल्विंग कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट्स इन वाटर एंड फ्रीजिंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस दैट आर नॉट केमिकल रिएक्शंस। तो हमने ये बात पढ़ी कि कैल्शियम क्लोराइड है अगर एक सॉल्ट है, और मैग्नीशियम सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है, इनको अगर आप पानी में हल करते हैं या फिर आप फ्रीजिंग यानी कि जो जमना का प्रोसेस है, फ्रीज़ होने का प्रोसेस है, ठीक है, ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस की, और ये केमिकल रिएक्शंस नहीं होते। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे। सो अगर आप लोगों के पास इस चीज़ में यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो कि आज हमने कवर किया उसमें कोई सवाल है, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। सो लेट्स गो फॉर डिस्कशन सेशन।